Hello friends, this is Menin sir and welcome for the economics lecture. Children, in the introduction lecture, I told you about the syllabus that we have, the 17 different chapters that we are going to study for our third semester, that is SYBcom. That's going to be before Diwali. Now, since we are going to study about macroeconomics, children, the first chapter itself, it's termed as Introduction to Macroeconomics. This chapter will give you an insight or an overview of all the topics that we are going to study in the coming days. So children, we have already studied in our lower standards that economics, there are two different branches that we have, microeconomics and macroeconomics. Children, when we refer to microeconomics, we know that we are studying about individual units, individual industries, individual firms, individual wages, prices. But when we say macroeconomic, children, it's a study of aggregates. It's a study of overall economy. It studies larger groups or it studies larger entities, children. So the words that we have heard prior to this, children, the word micro is derived from the Greek word mikros, which means small, and the word macro is derived from the Greek word macros, which means large. So that was something that we heard in the 12th standard. Now here, children, whenever you see any news, any business news, when you read the newspapers, we hear or we come across certain sentences, children, which give you a view of the overall economies. जैसे कि for example, children, in the year 2017, अगर हम लोग 2017 की बात करें यहाँ पे, तो 2017 में वर्ल्ड बैंक ने एक प्रेडिक्शन किया था. अभी वर्ल्ड बैंक का प्रेडिक्शन क्या था कि 2018 और 19 में इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट द रेट ऑफ 7.5%. ठीक है. एंड द रिपोर्ट ऑल्सो सेड दैट कि आवर इकोनॉमी में फेस सम प्रॉब्लम्स. इंडियन इकोनॉमी को चलो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे. उसके पीछे का रीजन ये था कि इंडियन गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया हुआ था और उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जाएगा किसके ऊपर? इनफॉर्मल सेक्टर. फॉर्मल और इनफॉर्मल, ऐसे दो सेक्टर्स होते हैं चलो इकोनॉमी में. And it would also strain the financial sector. Acha, the oil prices were rising, children, continuously. Oil prices, whenever they rise, they put a pressure on the material prices in the economy. And overall, children, जो अपना global economy है, उसमें बहुत ज़्यादा uncertainties थे. तो ये problems होते हुए भी Indian economy 7.5% से growth करेगा. ये बच्चों लोग एक prediction था. किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने, जो उन्होंने साउथ एशियन रिपोर्ट बनाया था उसमें. हाँ, बट दे ऑल्सो हैड अ पॉजिटिव व्यू ऑन इट विच सेज दैट कि अगर हमने जो जीएसटी लॉन्च किया था चिल्ड्रन, उसको अगर हम लोग इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को अगर थोड़ा बूस्ट देते हैं तो ऑटोमेटिकली होगा क्या पता है? दैट इंडियन इकोनॉमी कैन शो अ साइन ऑफ ग्रोथ एज वेल. चिल्ड्रन, व्हेन वी हियर ऑल दिस, जैसे कि अभी कोविड-19 का पैंडेमिक के थ्रू जा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को ऑलरेडी बताया जाता है कि आने वाले महीनों में या फिर आने वाले साल में अपना जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या होगा. चिल्ड्रन, ऑल दीज आर बेसिकली स्टेटमेंट्स विच रिलेट टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स. दे आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर इंडियन इकोनॉमी. सो आपके सामने सवाल ये आता होगा बच्चों लोग कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, मतलब इसमें एग्जैक्टली हम लोग पढ़ते क्या है. So, if I just highlight certain words, children, so first of all we can say that macroeconomics analyzes the entire or the whole economy and its functioning. अब बोले सर फिर भी स्पेसिफिकली अगर बात करनी रहेगी तो हम लोग क्या पढ़ते? तो एक वर्ड आएगा बच्चों बहुत बार आपको, एग्रीगेट्स. अब ये एग्रीगेट्स में सबसे पहला तो होता है अपना नेशनल इनकम. अच्छा, फिर हम लोग पढ़ते हैं अपने देश का एम्प्लॉयमेंट लेवल. देन चिल्ड्रन वी स्टडी अबाउट द जनरल प्राइस लेवल इन अ इकोनॉमी, यानी प्राइसेस, एवरेज प्राइसेस. अच्छा, अपने देश में इन्वेस्टमेंट्स कितना है. अच्छा, देश में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स होते हैं चलो उसको माइनस करने के बाद जो बचता है अपने पास उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. एंड सी चिल्ड्रन, ऑल दिस वर्ड्स विच आई टोल्ड यू, वेदर इट्स नेशनल इनकम, वेदर इट्स एम्प्लॉयमेंट लेवल, प्राइस लेवल, इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. एंड चिल्ड्रन, these variables or these activities, they show the collective behavior of the entire economy. पर हमारे देश के अंदर बच्चों जो अपना इकोनॉमी होता है उसके अंदर होते हैं कुछ अलग अलग एजेंट्स. अपना कंज्यूमर आएगा, गवर्नमेंट्स होते हैं चिल्ड्रन, प्रोड्यूसर्स में फर्म्स आते हैं, इंडस्ट्रीज आते हैं. हाँ, तो ये लोग कलेक्टिवली कैसे बिहेव करते हैं चिल्ड्रन, दैट्स व्हाट वी एक्चुअली एनालाइज इन इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स.
Now you might feel like, sir, do we have any specific definition for macroeconomics? Yes, children, हमारे पास उसका एक definition भी है. So definition, I'm just telling you, children, Kenneth Boulding, he has given a definition. He says that macroeconomics is that part of economics. तो चलो सबसे पहले एक बात तो क्लियर हो गई कि मैक्रोइकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच होता है. वी स्टडीज ओवरऑल एवरेजेस चिल्ड्रन. वी डोंट स्टडी अबाउट इंडिविजुअल यूनिट्स, वी स्टडी अबाउट ओवरऑल एवरेजेस. और एक वर्ड कौन सा आता है? एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम. एंड देन ही गोज ऑन स्पेसिफिकली टू से दैट macroeconomics will not deal with individual income, but it will deal with national income. It will deal not with individual prices, but it deals with the general price level in the economy. And it does not deal with individual output, but it will deal with the national output. Children, it's a very simple definition that we have. It's that part of economics, or macroeconomics is that part of economy which studies overall averages and the aggregates. It does not deal with individual income, but it deals with national income. It does not deal with individual prices, children. एक commodity का प्राइस कितना हुआ हम लोग किसमें पढ़ते हैं? We study that in microeconomics. लेकिन ओवरऑल हमारे देश में प्राइस लेवल क्या है वो हम लोग किसमें पढ़ते हैं? मैक्रोइकोनॉमिक्स. It does not study about the output that is produced by Reliance. It does not study about the output that is being produced by Tata. It does not study only the output that is being produced by Mahindra. It studies the output of the entire economy. And children, that's exactly the definition that we have for macroeconomics. Now, the next question will come to your mind. जब भी हम लोग microeconomics के बारे में पढ़ते थे, so what do you study, children? We used to study about demand, we used to study about supply, how the markets achieve equilibrium, and how the prices are determined. Then we study about the different types of markets, the factors of production. Now the question arises, children, कि you always ask me कि sir macroeconomics में exactly क्या पढ़ा जाता है? And the answer is here, children, in front of you, and we term it down as what is the scope or subject matter of economics. कि इसका scope क्या है? इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है? So children, it's a very simple concept. First of all, suppose if you are referring to something like, सबसे पहले इसका काम क्या आता है? तो we can determine what is the meaning of national income. So children, national income, the word they have used there, national. We don't call it as a state ka income. Sometimes they also calculate the GDP of the state, but mostly we call it as national income. Children, there are various factors which determine the national output, which is also known as national income. Children, we need to understand कि हमारे देश का जो प्रोडक्शन होता है वही हमारे देश का इनकम होता है. अच्छा, तो कौन कौन सी चीजों को हम लोग कंसिडर करते हैं? बच्चों लोग, हमारे पास जो भी इनकम आता है, इफ यू गो फॉर अ जॉब, आप जब जॉब पे जाओगे आपका पहला सैलरी आएगा, उसमें से आप कुछ गुड्स और सर्विसेज खुद के लिए खरीदोगे, उसको हम लोग सी करके बोलते हैं, दैट इज कंजम्पशन. कुछ पैसा आपने बचा के रखा, आपने उसको बैंक में रखा है, बैंक ने उसको किसी बिजनेस को इन्वेस्टमेंट करके दे दिया, सो आई. देन चिल्ड्रन, इकोनॉमी में जैसे कंज्यूमर्स पैसा खर्च करता है, जो सेविंग होता है इन्वेस्टमेंट. एट अ सिमिलर लेवल चिल्ड्रन, गवर्नमेंट विल आल्सो स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट्स इन द इकोनॉमी, सो दैट्स कॉल्ड एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. एंड देन चिल्ड्रन, वी हैव समथिंग व्हाट इज कॉल्ड एज नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स आर व्हाट चिल्ड्रन? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. इंडिया ने इतना इतना एक्सपोर्ट किया, इंडिया ने इतना इतना इंपोर्ट किया. अच्छा, जो बचता है बच्चों लोग, वो होता है नेट एक्सपोर्ट. वो पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है. अच्छा, you remember this formula children, 12th standard, C plus I plus G plus X minus M. C stands for consumption, I for investment, government expenditure and exports minus imports. इसको आप टोटल मार दोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके सामने जो अमाउंट आएगा चलो वो होता है आपके देश का नेशनल इनकम. क्लियर? सो नेशनल इनकम बेसिकली प्रोवाइड सम काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर चूजिंग और इवेल्युएटिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज. जैसे कि अगर हमारे देश का नेशनल इनकम चलो बहुत कम है, तो हमारा गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बना सकता है कि उसको कैसे हम लोग बूस्ट कर सकते हैं, उसको कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं. या फिर चिल्ड्रन की लाइक हमारा बहुत ज्यादा नेशनल इनकम ग्रोथ कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इट्स अ क्वांटिटेटिव मेथड विच टेल्स अस दैट द कंट्री इज मेकिंग अ लॉट ऑफ ग्रोथ. एंड यू कुड हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो नेशनल इनकम से डील करते हैं. एक सिंपल से सेंटेंस से अगर मैं आपको बताऊं कि नेशनल इनकम होता क्या है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज which are produced in our country during one accounting year. आपके देश में एक साल के अंदर कितने गुड्स बनाए गए थे और कितने सर्विसेज रेंडर किए गए थे, बच्चों उसको जब उसके प्राइस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो अमाउंट आता है वो होता है हमारा नेशनल इनकम.
We also call it, children, as gross domestic product. We also call it as gross national product, and we also call it as net national product. These are various concepts, children, related to national income. We are going to study them in detail in chapter number 3. So first of all, children, स्कोप में हम लोग मैक्रो में क्या पढ़ते, तो आपका आंसर रहेगा नेशनल इनकम. देन चिल्ड्रन वी कम अक्रॉस द सेकेंड पॉइंट ऑफ आवर आंसर, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द बिजनेस साइकिल्स. चिल्ड्रन, कोई भी बिजनेस आप सब लोगों को पता है स्टेबिलिटी नहीं दिखाता, इन द सेंस कि देयर वुड ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ अप्स एंड डाउन्स दैट आर एक्सपीरियंस्ड बाय एवरी बिजनेस कंसर्न और एवरी बिजनेस एंटिटी. सो ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. चिल्ड्रन, 3 एंटिटीज लेने हैं आपको. एक आपके देश का आउटपुट, दूसरा होता है चलो आपके देश का एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा होता है चलो आपके देश का इनकम. तो आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम व्हेन दे इंक्रीज, तो आप नाम क्या दोगे उसको, बोलने का एक्सपांशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. बट एट द सेम टाइम चिल्ड्रन, इफ ऑल दीज 3 वेरिएबल्स इफ दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन द सेंस कि लाइक आपके देश का इनकम, आपके देश का एम्प्लॉयमेंट और आपके देश का जो प्रोडक्शन रहेगा आउटपुट वो कम हो रहा है, तो वी कॉल इट एज इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन. अभी एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास 2 वर्ड्स है चिल्ड्रन यहाँ पे, एंड दोस 2 वर्ड्स व्हिच आई एम हाइलाइटिंग हियर आर कॉल्ड एज प्रॉस्पेरिटी एंड रिसेशन. आधे से ज्यादा वर्ड्स आपको क्लियर है. जैसे कि चिल्ड्रन ये चीजों में जनरली हम लोग क्या क्या देखते हैं यहाँ पे, वी जनरली टॉक अबाउट आवर नेशनल इनकम एंड वी टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट लेवल्स इन अ कंट्री, and they determine whether we are going through prosperity or recession. अभी बोलते हैं कि मार्केट में रिसेशन है, कभी प्रॉस्पेरिटी होता है. हाँ, तो ये अप्स एंड डाउन्स हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस साइकिल्स के बारे में. दैट इज बेसिकली अगेन चिल्ड्रन इट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 दैट विल बी स्टडिंग. पूरा टॉपिक ही हम लोगों को पढ़ने के लिए बिजनेस साइकिल्स. जब भी आएगा बिजनेस साइकिल्स आप याद रखोगे कुछ वर्ड्स, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन. इन फैक्ट देयर आर 4 बिजनेस साइकिल चिल्ड्रन, दैट इज प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन और उसमें से आता है इकोनॉमिक रिकवरी. क्लियर? अच्छा, पॉइंट नंबर 3 चिल्ड्रन हियर इज टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. चिल्ड्रन, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जो पढ़ने जाते हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक कंज्यूमर ने कितना डिमांड किया, अच्छा दूसरे एक कंज्यूमर उसने कितना डिमांड किया. एग्रीगेट डिमांड, व्हाट डज इट टॉक अबाउट चिल्ड्रन? इट्स अ डिमांड ऑफ द एंटायर इकोनॉमी, कि इंडिया के सब कंज्यूमर्स ने मिलकर कितना डिमांड किया है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड. अच्छा, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट सप्लाई चिल्ड्रन, एग्रीगेट सप्लाई टॉक्स ओवर एक प्रोड्यूसर ने जो गुड्स प्रोड्यूस करके आप तक पहुंचाए, वो क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई. लेकिन चिल्ड्रन, इंडिया में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग अलग अलग एम्प्लॉयमेंट लेवल्स पे कितना प्रोडक्शन करके आपको सप्लाई करते हैं, वो होता है एग्रीगेट सप्लाई. सो इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा रहेगा. और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई चिल्ड्रन दे हेल्प अस टू डिटरमाइन अवर नेशनल इनकम. क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा कभी आपके स्टडीज में, तो एग्रीगेट डिमांड और नेशनल इनकम का फॉर्मूला सेम आता है चिल्ड्रन, C+I+G+X-M. Okay, so we study about the national income fluctuations and how aggregate demand and aggregate supply determine the national income of our country. Point number 4 children here, that's we also study about the employment and the unemployment levels in our country. Children, macroeconomics का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट. हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट लेवल कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे कि हमारे देश में स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है. चिल्ड्रन, देयर आर कंट्रीज विच आर टेक्नोलॉजिकली हाईली एडवांस कंट्रीज लाइक अमेरिका, जापान, चाइना. तो ऑटोमेटिकली दोज कंट्रीज दे यूज सम लेबर सेविंग टेक्निक्स, दे यूज मोर एंड मोर मशीन्स एंड दे यूज लेस लेबर, बट दैट लीड्स टू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. Countries like India, we focus on labor intensive techniques of production because we want to give jobs to huge amount of population that we have in our country. Children, हमारे देश में कितना रोजगार मिलता है लोगों को, ये तो हमारे देश की प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा. अगर आप ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को अंडरटेक करते हो तो ऑटोमेटिकली ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगे. वहीं पे अगर आपके देश के अंदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कम है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट लेवल विल बी लेस. वेज रेट, चिल्ड्रन, वेज रेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा. अगर ज्यादा वेजेस पे करने पड़े तो कंपनीज कम लोगों को हायर करेगी. अच्छा, कम वेजेस देने पड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपनीज कैन हायर मोर पीपल
एंड फाइनली चिल्ड्रन, हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट का पॉलिसीज. व्हाई गवर्नमेंट पॉलिसी चिल्ड्रन? जैसे गवर्नमेंट कम्स अप विथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया, इन इंडिया वी कम अक्रॉस वन स्कीम दैट इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसको है मनरेगा. मनरेगा बेसिकली स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. बजट में बच्चों बहुत सारा पैसा एलोकेट किया जाता है, और ये पैसा एलोकेट करने के पीछे मेन रीजन क्या होता है? तो गांव में ना कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चल किया, कहीं पे डैम कंस्ट्रक्ट करे, कहीं पे रोड कंस्ट्रक्ट करे, और वहां पे गांव के लोगों को जॉब्स दिया जाता है. नाउ दैट कैन इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट इन योर कंट्री. क्लियर? अच्छा, पॉइंट नंबर 5 चिल्ड्रन, इट्स टॉकिंग अबाउट मनी एंड प्राइस लेवल. अभी आप बोलोगे सर 2 पॉइंट साथ में, एक तो है मनी. Now when we talk about money, we know that कि पैसा जो होता है ना बच्चों, पैसा जैसे कमोडिटीज का डिमांड और सप्लाई होता है बच्चों, वैसे ही होता है पैसे का डिमांड और पैसे का सप्लाई. ओके, सो डिमांड फॉर मनी एंड द सप्लाई ऑफ मनी, these are the two factors that we have. अच्छा, नाउ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, they will determine what will be the rate of interest in a country children. और मार्केट में कितना पैसा होता है वो तय करेगा कि हमारे देश का प्राइस लेवल कितना होगा. हाउ? अननेसेसरीली आरबीआई ने मार्केट में पैसा रिलीज कर दिया है, गवर्नमेंट पैसा खर्चा करते जा रहे हैं. मार्केट में चलो पैसा इतना बढ़ जाएगा ना कि महंगाई आएगी, बिकॉज विल बी टू मच ऑफ मनी एंड विल बी लेस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट. Whereas children, if there is less money and high amount of goods and services, then children, what actually happens here, that can put you down into deflation, because there will be no money to buy those goods. Achha, here children, macroeconomics can study points related to inflation. Inflation मतलब आपको पता है महंगाई बोलते हैं उसको हम लोग, continuous rise in the prices of goods and services. और उसका जो opposite होता है जब चीजें बहुत सस्ती होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Deflation. And sometimes they can come into combination, दोनों जो साथ में मिलके आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Stagflation. Clear? So 4-5 चीजें जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करें चिल्ड्रन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्पोक दैट वी स्टडी अबाउट नेशनल इनकम इन मैक्रोइकोनॉमिक्स. सेकंड पॉइंट सेड दैट वी आल्सो स्टडी अबाउट दोस बिजनेस साइकिल्स. देन वी स्टडी अबाउट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. फिर आता मनी एंड प्राइस लेवल्स. Children, the next point that we have here, that's related to economic growth and economic development. Children, growth and development, these are the two different words that we have, which have got very important contribution to macroeconomics. Jaise ki children, we all know that economic growth and development are not short-term phenomena. They take a long term. जैसे इंडिया 1947 में आजाद हो गए थे हम लोग, ऑलमोस्ट लाइक आज तक हम लोग डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. Now, suppose for example कि economic growth जो होता है, economic growth, it could be like short term, but economic development is a long term process. So 1950s और 1960s की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों लोग, if you talk about the 1950s and 1960s, you will understand one thing कि most of the countries children focused on development economics, and that development economics are basically trying to focus onto the development of the underdeveloped and backward countries. ठीक है. सो कभी आपको लगता है बच्चों ऐसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों सेम होते हैं? हमको लगता था पहले कि इंडिया ने ग्रोथ किया है फिर इंडिया ने डेवलपमेंट किया. आप बोलोगे सर क्या, इट्स वन एंड द सेम. बट लेट मी टेल यू चिल्ड्रन, स्टार्टिंग में ऐसे लगता था, लेकिन अभी देयर इज अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बच्चों इंडिया का ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इनकम बढ़ना. डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इंप्रूव. ह्यूमन डेवलपमेंट करके भी बोलते हैं उसको. सो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट चिल्ड्रन इट्स क्वालिटेटिव. सो वी स्टडी अबाउट दैट इन इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स. एंड लास्टली चिल्ड्रन वी टॉक अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड द एक्सचेंज रेट. बैलेंस ऑफ पेमेंट चिल्ड्रन, जब भी आपके सामने वर्ड आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, फटाक से आपके सामने एक फॉर्मूला आना चाहिए, एक्स माइनस एम. सो एक्स इज व्हाट चिल्ड्रन? एक्सपोर्ट्स. एम इज व्हाट? इंपोर्ट्स. सो इनडायरेक्टली चिल्ड्रन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड. सो इंटरनेशनल ट्रेड में से अपने पास जो बचता है, फिर अपने देश का जो पैसा बाहर चला जाता है, अल्टीमेटली वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो हमारे देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है बच्चों, उसको डिटरमाइन करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच डिटरमाइन द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. मेनली स्पीकिंग देयर आर 2 पॉइंट्स चिल्ड्रन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स.
अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट्स कम है, तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स फेवरेबल रहेंगे। इंपोर्ट्स ज्यादा हो गए तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अनफेवरेबल होते हैं, क्योंकि हमारे देश का पैसा बाहर चला जाएगा और दैट इज गोइंग टू हैव स्ट्रेट डाउन इफेक्ट ऑन अ नेशनल इनकम। कि एक्स माइनस एम का जो नेट बैलेंस आता है वो पॉजिटिव रहेगा तो हमारा जीडीपी बढ़ जाता है, और अगर एक्स माइनस एम का वैल्यू नेगेटिव में जाएगा तो हमारे देश का पैसा बाहर चला गया, मतलब इनडायरेक्टली हमारे देश का इनकम कम हो गया। तो उसके कॉजेस पढ़ेंगे हम लोग। किसके कॉजेस बच्चों? डेफिसिट। व्हाट्स डेफिसिट? व्हेन एक्सपोर्ट्स आर मोर और व्हेन एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स वी कॉल इट अ डेफिसिट। कॉजेस आर वेरी सिंपल, बिकॉज इंपोर्ट्स आर हाई, एक्सपोर्ट्स आर लेस। इट डज नॉट ओनली स्टडी द कॉजेस चिल्ड्रन, लेकिन ये आपको बताएगा कि कौन कौन से मेजर्स होते हैं जिससे हम लोग हमारे देश में जो डेफिसिट्स है उसको कम कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके आते हैं बच्चों लोग कि हम लोग एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन, और इंपोर्ट्स के लिए हम लोग कैसे सब्सटीट्यूट्स ढूंढ सकते हैं चिल्ड्रन। जैसे मेक इन इंडिया, ऐसा कुछ एक स्कीम जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। व्हाट डिड इट एम एट चिल्ड्रन? कि जो गुड्स पहले बाहर से इंडिया में आते थे उसको अभी हम लोग इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे, तो मेक इन इंडिया, तो अपना जो पैसा बाहर जाता है वो रुक जाएगा। सो चिल्ड्रन ऑल दी 7 पॉइंट्स टुगेदर। तो इफ दे आस्क यू इन द एग्जाम, एक क्वेश्चन आता है डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप, तो आप डेफिनेशन दे सकते हो चलो के बोल्डिंग का, और इस 7 पॉइंट्स को हम लोग ऐसे। चिल्ड्रन वन पॉइंट इज दैट कि SYBcom में पढ़ते वक्त हम लोग बैठ के रट्टा तो नहीं मार सकते, लेकिन फिर ये मेन पॉइंट्स को बैठ करके उसके बारे में हम लोग अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो भी मार्क्स मिलेंगे हम लोगों को, ठीक है? यू डोंट हैव टू लर्न इट। Children, talking about the macroeconomics and its importance. We already seen macroeconomics, children, basically tries to study the aggregates, the entire economy. So the first and the foremost important, children, of macroeconomics is that it helps us to understand the functioning of an economy. So here the point that is being highlighted here, children, we understand the functioning of the economy. Children, if you just understand that the economy is a very vast and a complicated structure, there are n number of variables, children, when we talk about the entire economy. जैसे कि अगर हम लोग इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारा इकोनॉमी होता है, फिर वो इकोनॉमी के अंदर कुछ अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। Then children, we would also have something like households होते हैं, businesses रहेंगे। Then children, we also have the government. अच्छा, then the markets are divided into different types. Perfect competition होता है, monopolies होते हैं, then we also got monopolistic competition. The primary sector, the secondary sector, tertiary sector, we have got agriculture, services, industries. तो सवाल ये आता है बच्चों लोग कि macroeconomics will help us to understand how the entire economy functions. And see, each and every sector of the economy, children, will keep on interacting with each other. इंटरैक्टिंग विद ईच अदर इन द सेंस, चिल्ड्रन, जैसे कि हाउस होल्ड है, बिजनेस है, तो आपस में ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे हाउस होल्ड है तो हम लोग क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो लोग वो फैक्टर्स को हायर करते हैं, बिजनेसेस गुड्स एंड सर्विसेज बना के देते हैं, हाउस होल्ड्स उसको यूज करते हैं, हाउस होल्ड्स उनको पेमेंट देंगे, हाउस होल्ड्स गवर्नमेंट को टैक्सेस भरते हैं चिल्ड्रन। अच्छा, गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करता है, बिजनेसेस और कॉर्पोरेट्स दे पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सम amount of benefits or subsidies to the business. That's called as the interaction. So children, macroeconomics helps us how these different variables or different economic agents, how they interact with each other and how do they function. Clear? Children, the second point that we have, which talks about evaluating the economic performance. Children, wherever there is any economic activity, then children, there is a need for evaluation. सो इकोनॉमिकली हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करें चिल्ड्रन, तो कैसे, उसका एक मेजरमेंट होना चाहिए, उसका एक मेजरिंग रॉड होना चाहिए कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है क्या नहीं हुआ है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री है क्या हम लोग डेवलप्ड कंट्री है। सो चिल्ड्रन, हियर वी हैव गॉट 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट एज वी हैव एनालाइज्ड अर्लियर चिल्ड्रन। आई टोल्ड यू देयर आर दिस 2 कॉन्सेप्ट्स कॉल्ड एज, एक होता है ग्रोथ, दूसरा होता है डेवलपमेंट। एंड यू नो, growth and development, they are considered as a very important indicators of economy's performance. देखो बच्चों लोग, अगर हमारे देश का डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोथ हुआ है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि इकोनॉमी का परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर हम लोग का ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इकोनॉमी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तो सवाल ये आता है कि लाइक ये कैसे काउंट किया जाता है। तो 2 चीजें होती है इसके पीछे, एक होता है नेशनल इनकम
और एक होता है पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम एज यू ऑल नो चिल्ड्रन वी टॉक अबाउट इट्स टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे देश में प्रोड्यूस किए जाते हैं एक साल में, तो होता है हमारा नेशनल इनकम। मतलब टोटल प्रोडक्शन जब उसको हम लोग उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट आता है वो होता है हमारे देश का नेशनल इनकम। तो पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। अगर देश ने इतना कमाया तो हर एक व्यक्ति ने कितना कमाया। सो चिल्ड्रन, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम कंपेयर टू लास्ट ईयर, इस साल में उन्होंने अगर ग्रोथ दिखाया तो हम लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी का परफॉर्मेंस अच्छा था। एंड चिल्ड्रन, इट्स नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, एक इकोनॉमी को तो अपना खुद का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए काम आता ही है। At the same time, children, these concepts are very useful to compare the performance of different economies in the world. Just children, if you want to compare India with America, we can compare both the country GDP. जिसका GDP ज्यादा होगा उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। फिर हम लोग दोनों देशों का पर कैपिटा इनकम कंपेयर करके देखते हैं और फिर हम लोग दोनों कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। और इफ देयर आर मोर कंट्रीज चिल्ड्रन, तो ऑब्वियसली हम लोग कंट्रीज को रैंकिंग भी दे सकते हैं कि कौन से कंट्रीज का कितना ग्रोथ हुआ है, कौन से कंट्रीज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। क्लियर? यस। पॉइंट नंबर 3 चिल्ड्रन टॉक्स अबाउट फॉर्मुलेटिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज। चिल्ड्रन, व्हेनेवर गवर्नमेंट कम अक्रॉस एनी पर्टिकुलर पॉलिसीज इन द सेंस की लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो एनालिसिस रहेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्टडी होता है या फिर उसके जो मॉडल्स होते हैं, ग्रोथ मॉडल्स, इट विल हेल्प द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट सर्टन पॉलिसीज। ठीक है, वो पॉलिसीज कुड बी ईदर इकोनॉमिक पॉलिसी विच आर रिलेटेड टू मनी, or they could be social policies which are related to people. So जैसे कि children, if you talk about Keynesian theory, then we have one policy children, जैसे कि बहुत सारे business cycles होते हैं, in the sense like we have got prosperity and then we have got recession. तो government comes up with what is called as the counter cyclical policies. काउंटर साइक्लिकल मतलब चिल्ड्रन, जैसे कि इफ देयर इज टू मच ऑफ एक्सपांशन और हमारे देश में चलो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आ गया, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा पैसा, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो चिल्ड्रन गवर्नमेंट कैन कम अप विथ समथिंग व्हाट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज। आरबीआई कम्स विथ अ कॉन्ट्रैक्शनरी और अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी वेयर मनी कैन बी मेड लिटिल कॉस्टली टू कंट्रोल द इकोनॉमी। और बच्चों बाय चांस अगर हमारे इकोनॉमी में अगर रिसेशन दिखता है तो गवर्नमेंट एंड आरबीआई विल कम अप विथ एक्सपांशनरी पॉलिसी, जो मनी सप्लाई बढ़ाते हैं, जो टैक्सेस को कम करते हैं। तो ये काउंटर साइक्लिकल। वी आर गोइंग टू स्टडी चिल्ड्रन ऑल दिस इन डिटेल। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक चिल्ड्रन विच इज अ डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, ज्यादातर हम लोग के प्रॉब्लम्स पता है आपको, वी गो थ्रू रिसेशन, देन वी फेस सम काउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड देन देयर इज इन्फ्लेशन। रिसेशन है तो गवर्नमेंट को कौन सा पॉलिसी बनाना चाहिए, जैसे टैक्सेस को कम कर सकते हैं। आरबीआई चिल्ड्रन बैंक रेट्स को कम कर देता है, रेपो रेट्स को कम कर देता है ताकि ज्यादा लोग लोन लेके उसको खर्च करें ताकि मार्केट का डिमांड बढ़ जाए बच्चों लोग। अच्छा, देन सपोज इफ यू टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, चिल्ड्रन गवर्नमेंट को अगर लगता है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो गवर्नमेंट क्या करता है, खुद बहुत सारा इन्वेस्टमेंट्स करता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे तो उसके जरिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एंड देन देयर इज इन्फ्लेशन। इफ देयर इज इन्फ्लेशन चिल्ड्रन, आरबीआई रेट्स को बढ़ाएगा और पैसे को महंगा किया जाता है ताकि लोगों के खर्चे को कंट्रोल में रखा जाए। गवर्नमेंट टैक्सेस को चिल्ड्रन क्या करेगा, यहाँ पे बढ़ाता है टू कर्ब दैट डिमांड इन द मार्केट। और एट द सेम टाइम चिल्ड्रन आरबीआई will increase the rates of interest so that people don't spend more, so that can control inflation. तो आपने देखा हर एक प्रॉब्लम के लिए, हर एक इशू के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ पॉलिसीज होते हैं। अगर वो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी तो उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, अगर वो पॉलिसी बच्चे लोग आरबीआई बनाती है तो उसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसीज बुलाते हैं। क्लियर? पॉइंट नंबर 4 चिल्ड्रन दैट्स हाईलाइटेड हियर, दैट्स अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस। बच्चों बिजनेसमैन जो होते हैं, आजकल आपने देखा रहेगा देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस दैट गोज अराउंड। एक देश अपने प्रोडक्ट दूसरे देश में लॉन्च कराता है, राइट? इंडिया कुछ चीजें एक्सपोर्ट करता है, बाहर के देश बहुत सारी चीजें इंडिया में लॉन्च कराती है। तो चिल्ड्रन बिफोर लॉन्चिंग एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ट्रेड, द बिजनेसेस दे स्टडी द मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन एनी पर्टिकुलर कंट्री। जैसे चिल्ड्रन इफ यू टॉक अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे आपने अगर देखा कि इंडिया में रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि लाइक अमेरिकन इन्वेस्टर्स विल इन्वेस्ट द मनी इन इंडिया,
अच्छा, अगर अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो ऐसे भी तो हो सकता है बच्चों कि लाइक इंडिया के लोग वहां पे सेविंग्स करना चालू कर दें, कुछ लोग यहां से बोरो करके वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। चिल्ड्रन, इफ यू टॉक अबाउट द जनरल प्राइस लेवल्स कि लाइक महंगाई है या फिर रिसेशन चल रहा है, या फिर इफ इंडिया इज गोइंग थ्रू अ बिजनेस साइकिल लाइक रिसेशन, अच्छा हमारे देश में एक्सचेंज रेट क्या है, जैसे कि डॉलर का रेट क्या चल रहा है, डॉलर्स एप्रिसिएट हो रहे हैं क्या डॉलर्स डेप्रिसिएट हो रहे हैं। एंड देन चिल्ड्रन वी ऑल्सो टॉक अबाउट द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री, एंड देन द इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर लेवल्स। इन्वेस्टमेंट्स आर बेसिकली those particular criteria in children. It could be a private investment, it could be a government investment, and it could be government expenditure as well. ठीक है, तो चलो ये सब चीजें मिलके डिसाइड करेगी कि हमारे बिजनेसेस का परफॉर्मेंस कैसे होता है। जैसे चिल्ड्रन सपोज फॉर एग्जांपल किसी देश में अगर प्राइस लेवल बहुत ज्यादा है तो ऐसे भी तो हो सकता है कि लाइक बिजनेसेस कुड एक्चुअली इन्वेस्ट मोर, दे वुड प्रोड्यूस मोर, क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट to get a benefit of that higher price levels in the economy. लेकिन children at the same time अगर रिसेशन दिख रहा है तो बिजनेसमैन दे प्ले सेफ। चिल्ड्रन, इफ एक्सचेंज रेट्स चेंज इन द सेंस कि लाइक इफ डॉलर्स आर बिकमिंग कॉस्टली, तो हो सकता है कि लाइक डॉलर्स कॉस्टली होने से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सडनली अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आधे से ज्यादा पार्ट्स हम लोग इंपोर्टेड यूज करते हैं। डॉलर महंगा हो गया तो इंपोर्ट्स महंगे होते हैं, इंपोर्ट्स महंगे हो गए तो कार महंगा होगा, कार महंगा होगा तो चलो मार्केट में कार्स का डिमांड कम हो सकता है। सो चिल्ड्रन, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको ये सब का परफॉर्मेंस है, फिर ये सब का इंपॉर्टेंस या फिर ये सब का इंपैक्ट क्या होता है इकोनॉमिक्स के ऊपर वो सिखाएगा। क्लियर? देन पॉइंट नंबर 5 चिल्ड्रन टॉक्स अबाउट फोरकास्टिंग द फ्यूचर ट्रेंड्स। इट कुड बी लाइक चिल्ड्रन, आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। अच्छा, आने वाले दिनों में डॉलर का रेट बढ़ने वाला है क्या कम होने वाला है। अच्छा, इन द नेक्स्ट इंडिया का ग्रोथ रेट क्या होगा, आने वाले दिनों में प्राइसेस कैसे रहेंगे, बढ़ने वाले क्या कम होने वाले हैं। इंडिया का नेशनल इनकम क्या रहेगा, या फिर एम्प्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। ये सब चीजों का फोरकास्ट होता है बच्चों। एंड सी चिल्ड्रन, ये सबके लिए बहुत सारा डेटा एनालाइज किया जाता है। गवर्नमेंट के कुछ एजेंसीज होते हैं, जैसे वी गॉट अ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये सब लोग बहुत सारा लार्ज बिग डेटा इज बीइंग कैलकुलेटेड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट चिल्ड्रन हम लोग आने वाले दिनों के लिए गवर्नमेंट बिजनेसेस के लिए कुछ फॉर्मुलेट करती है पॉलिसीज। नाउ दोस पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस चिल्ड्रन, क्लियर? एंड देन मेकिंग सम पॉलिटिकल चॉइसेस। पॉलिटिकल चॉइसेस चिल्ड्रन आर बेसिकली लाइक देयर आर सम स्ट्रॉन्ग इंटरलिंकेजेस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में चलो बहुत सारा लिंक होता है। जैसे कि ज्यादातर लोग पॉलिटिकल चॉइस करते वक्त मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को कंसिडर करते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन सपोज बहुत सारे गवर्नमेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को हाईलाइट करके वोट मांग सकते हैं। जैसे कि कोई गवर्नमेंट आता है, बोलते कि हम लोग महंगाई कम करके देंगे, और फिर लोग उनको वोट करते हैं। चिल्ड्रन, सम पीपल जैसे कि मोदी इफ ही सेज कि लाइक हम लोग फॉरेन का इन्वेस्टमेंट्स लेके आएंगे, मेक इन इंडिया करेंगे, इट मीन्स चिल्ड्रन कि लाइक लोग वी कैन जज द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स। जैसे कि किसी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा के दिया तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा है। किसी गवर्नमेंट ने महंगाई को कंट्रोल करने में हेल्प किया है तो हम बोलते हैं कि हाँ ये गवर्नमेंट को वोट करते हैं। या फिर बहुत सारे गवर्नमेंट जैसे कि प्रेजेंटली इफ यू सी देयर इज अ स्कीम दैट इज कॉल्ड उज्ज्वला, जहां पे गांव-गांव में गरीब लोगों को हम लोग एलपीजी गैस अवेलेबल करा के दे रही है गवर्नमेंट। नाउ दैट चिल्ड्रन टॉकिंग अबाउट वेलफेयर। कोई गवर्नमेंट आ गए, उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च कर दिया एंड ईच एंड एवरी चाइल्ड इज एंटाइटल्ड टू प्राइमरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। ओके, तो लोगों को वेलफेयर मिल रहा है फ्री में। अगर हम लोग हेल्थ, जैसे कि अगर आप लोगों को पता है बहुत सारे स्कीम्स होते हैं जहां पे आप किसी हॉस्पिटल में जाके फ्री में ट्रीटमेंट करा के ले सकते हो। तो चिल्ड्रन ये बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है जो आपको ये बताएगा कि गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है। सो लोगों को गवर्नमेंट का चॉइस करते वक्त इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा, और इकोनॉमिक्स का परफॉर्मेंस बच्चे लोग गवर्नमेंट की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? ना दो दिस facts prove that macroeconomics is a very important concept children, then also we would actually say that macroeconomics के बच्चों अपने खुद के कुछ limitations होते हैं।
जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो बोल रहा है, इट सेज दैट इट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन एग्रीगेट्स। चिल्ड्रन वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दोज एग्रीगेट वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, हम लोग किसको इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे, माइक्रो लेवल को इग्नोर करते हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम चिल्ड्रन वी ऑल्सो नो दैट कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कि आपने बोल दिया कि लाइक इंडिया का इनकम बढ़ गया है, इंडिया का नेशनल इनकम बढ़ गया, बट चलो उसका ये मतलब तो नहीं होता ना कि मेरा सैलरी बढ़ गया। ऐसे हो सकता है कि लाइक लास्ट ईयर मेरा सैलरी उतना ही था, आज मेरा सैलरी उतना ही है, लेकिन फिर भी दिख रहा है कि इंडिया का इनकम लेवल बढ़ गया। बट चलो वहां पे इधर ऐसे भी दिखा सकते हैं कि लाइक इंडिया का इनकम लेवल कम हो गया, नेशनल इनकम या फिर जीडीपी कम हो गया, और वहां पे मुकेश अंबानी ने और एक 8,000 करोड़ का घर बना लिया सपोज एंटीला के जैसे, लेकिन यहाँ पे तो इनकम कम होते। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स मे नॉट प्रॉपरली इंडिकेट और इट मे नॉट प्रॉपरली रिवील कि माइक्रो लेवल पे एक्चुअली चेंजेस क्या होते हैं। बच्चे लोग, मेरा ओवरऑल एवरेज या फिर परसेंटेज बढ़ गया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मेरा मैथ्स का मार्क्स भी बढ़ गया। ऐसे भी तो हो सकता है बाकी से बड़े मैथ्स बढ़ा ही नहीं है, मैथ्स में कम हुआ है, बाकी सब सब्जेक्ट्स की वजह से मेरा परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है। सो दिस इज द डिफरेंसेस दैट यू कुड एक्चुअली हैव, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल ये बताता है कि प्राइसेस बढ़ गए। अभी इसका मतलब ये तो नहीं कि लाइक हर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ा है, कुछ कमोडिटी ऐसे भी हो सकते हैं जिसका प्राइस नहीं बढ़ा है, महंगाई कम हो गई, इसका मतलब ये नहीं होता है कि लाइक हर एक चीज सस्ती हो गई है करके, ठीक है। सो इट मे नॉट टेक प्लेस इन केस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये पहला प्रॉब्लम है। देन देयर विल ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चिल्ड्रन बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैक्रो पॉलिसीज बच्चे लोग दे try to benefit the entire nation as a whole, okay, they try to benefit the entire nation. So we can see like it can be at the cost of interest of some micro units or sectors. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन कि अगर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा कम करा दिया, क्यों, क्योंकि बिजनेसेस को फायदा होना चाहिए। तो हियर चिल्ड्रन कैन वी से लाइक दिस कि there are certain people who earn income from bank deposits, they will get adversely affected. What it means children कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया ताकि बिजनेस इसको फायदा करा के दे। बिजनेस मैन वो लोग आसानी से लोन ले सकते हैं, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करा सकते हैं। बट चिल्ड्रन डोंट यू थिंक इफ द इंटरेस्ट रेट्स आर लोअर्ड, तो जो लोग अपने सेविंग्स को बैंक में रख के कुछ पैसा कमाना चाहते हैं उनको तो लॉस होगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। सो चिल्ड्रन इस और दिस बिजनेस को फायदा करा के देना, इट कुड बी लाइक अ लार्जर पर्सपेक्टिव, इट कुड बी लाइक मैक्रो इकोनॉमी। लेकिन जो बंदा बैंक में पैसा रख के कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसको लॉस होता है। तो आपने देखा कभी कभी माइक्रो और मैक्रो कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं। क्लियर? देन चिल्ड्रन वी टॉक अबाउट इट इग्नोर्स वेलफेयर। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड होता है बच्चों लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट मीन्स दे स्टेट थिंग्स एज दे आर। आपको पता है बच्चों इकोनॉमिक्स में दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक वी हैव गॉट पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव चीजें जैसी है वैसे बताते, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो है, इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, उसको पिंक होना चाहिए था, ये नॉर्मेटिव साइंस होता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक चिल्ड्रन दे डू नॉट वैल्यू जज, मतलब जजमेंट पास नहीं करते इसको अच्छा होना चाहिए था, इसको खराब होना चाहिए था। सो इट ओनली प्रिस्क्राइब्स, उसे प्रिस्क्राइब करेगा एंड इट प्रिस्क्राइब्स बट ओनली डिस्क्राइब्स इकोनॉमिक फेनोमेन। प्रिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन आपको पता है, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलता है कि आपको ये हुआ है, आपके प्लेटलेट्स कम हो गए, तो डिस्क्रिप्शन होता है। फिर वो जो दवा देता है चलो होता है प्रिस्क्रिप्शन, ऐसे करना चाहिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक चिल्ड्रन सिर्फ डिस्क्राइब करता है, आपको प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। इट ओनली सेज थिंग्स एज दे आर, ये ऐसा है, ये गरीबी है, ओके। इट डजंट टेल यू कि लाइक फॉर एग्जांपल वो होना नहीं चाहिए था। सो एंड द पॉलिसीज कुड बी बेस्ड ऑन मॉडल्स विच आर नॉट वेलफेयर ओरिएंटेड। मतलब आप जो पॉलिसी लेके आओगे जरूरी नहीं बच्चों कि वो सबके सब लोगों को फायदा करा के ही देगा। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक आध पॉलिसी लाया जहां पे उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग लोन माफ करते हैं लोगों का, लेकिन फिर उसमें आपको पता है कि लाइक जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं जिन्होंने ज्यादा लोन्स लिए रहते हैं उनको फायदा होता है क्योंकि लोन माफ होता है। गरीब को तो कोई लोन देता नहीं तो उसका लोन माफ होने का सवाल नहीं आता, और अगर माफ होता भी रहेगा बच्चों तो भी अमाउंट बहुत कम होता है। क्लियर? अच्छा, देन चिल्ड्रन हियर वी कम टू द पॉइंट विच टॉक्स अबाउट द रोल ऑफ मनी। नाउ macroeconomics it generally talks about consumption, it talks about the income, savings and investments,
और इस सबके बीच में एक कॉमन मेजर होता है, चलो होता है पैसा। लेकिन पैसे का वैल्यू आपको पता है इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और ये सब बदलते रहते हैं। आपको पता है अगर इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा हाई है तो हम लोग को ये भी पता है कि लाइक पैसे का वैल्यू कम हो गया है, चीजें सस्ती होती है तो हम बोलते हैं कि पैसे का वैल्यू बढ़ गया है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो हम लोग बोलते हैं कि पैसे का वैल्यू ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम है तो पैसे का वैल्यू नहीं होता है। सो दिस थिंग्स दे कीप ऑन चेंजिंग, और जो चीजें बदलती रहती है, जो कॉन्स्टेंट नहीं होती है, उसका मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज जो होगा वो प्रैक्टिकली लिमिटेड होगा। देन चिल्ड्रन, मैक्रो इकोनॉमिक्स इट मिसमैचेस विथ रियलिटी। जैसे कि हम लोग ज्यादातर जो अजम्पशंस होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो कैसे होते हैं? अनरियलिस्टिक, और दे कुड बी ऑल्सो क्रिटिसाइज बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम रियलिटी। मतलब रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन लिमिटेड होगा। लिमिटेड इन द सेंस की लाइक चिल्ड्रन यू नो, जब इन्फ्लेशन आता है तो हम लोग क्या करते हैं? चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइक यू नो टैक्सेस को बढ़ाते हैं, क्या सोच के कि पब्लिक अपना खर्चा कम करेगी तो डिमांड कम होगा तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। अभी ऑलरेडी मार्केट में महंगाई है और उसमें गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा देगी तो आपको पता है और ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो इसको प्रैक्टिकली कितना अप्लाई करना है हम लोगों को, इस सबके बीच में थोड़ा मिसमैच हो सकता है। एक आध साइड में अगर महंगाई है तो गवर्नमेंट सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए कंट्रोल करे इकोनॉमी को और आरबीआई एक्सपांड करते जा रहे, तो दे कुड बी अ मिसमैच। And lastly, children, we talk about limited application to developing countries. देखो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मॉडल्स रहता है ज्यादातर डेवलप कंट्रीज के लिए बहुत काम आएगा बच्चों लोग, जो इंडस्ट्रियलाइज है, जो फ्री मार्केट इकोनॉमीज है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्राइवेट। हाँ, लेकिन इन जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है चिल्ड्रन, ओके, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, जो अभी अभी उभर के बाहर आ रहे हैं, तो वहां पे मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स का यूज बहुत लिमिटेड होगा चिल्ड्रन। लेट मी साइट एन एग्जाम्पल चिल्ड्रन। जैसे कि अगर गवर्नमेंट को लगा कि बहुत पब्लिक खर्च करी, दे आर स्पेंडिंग मोर मनी, मार्केट में महंगाई आ गई, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहिए। लेकिन चिल्ड्रन इंडिया में दो मार्केट्स दिखेंगे आपको, एक होता है ऑर्गेनाइज मार्केट, एक होता है अनऑर्गेनाइज मार्केट। लोन जब चाहिए मेरे को तो मैं बैंक में भी जा सकता हूँ या फिर मैं एक मनी लेंडर के पास भी जाता हूँ। बैंक को कौन करता है? कंट्रोल, आरबीआई। लेकिन मनी लेंडर्स दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। तो बताओ यहाँ पे क्या हो गया है? और डेवलपिंग कंट्रीज में बच्चों पता है अनऑर्गेनाइज मार्केट्स ज्यादा होते हैं। अभी गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो हम लोग बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन फॉरवर्ड करते, लेकिन उसमें होता क्या है? इंडिया में आपको अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटरप्राइजेज ज्यादा मिलेंगे। अभी आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो गवर्नमेंट आपको लोन देगी नहीं। तो आपने देखा डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए इस सब का फायदा बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो जाता है। So irrespective of all these limitations, children, macroeconomics will actually have a lot of importance in today's complicated and this very important business scenario, children, that we have. So children, the first chapter that we analyzed here, which spoke about the introduction to macroeconomics. As I told you earlier, children, मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर ये जो फर्स्ट वाला है, ये हम लोग आगे जैसे पढ़ेंगे तो इसमें से हर एक चैप्टर जो हमने हर एक पॉइंट जो डिस्कस किया वो आगे जाके आपको एक एक चैप्टर करके आएगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट चिल्ड्रन द फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड लेक्चर और द नेक्स्ट लेक्चर दैट वी हैव कमिंग विल बी टॉकिंग अबाउट the circular flow of national income, which will be a very important and interesting chapter, children. So see you in the next lecture with another chapter. Till then, bye everyone, take care and be safe.